So we know that density is equal to mass by volume. So we have to arrange this in the order of their increasing density. So least density will be of air, then it will be exhaust from chimney. चिमनी क्या होता है? जहां से धुआं निकलता है ना, रसोई का चिमनी होता है, इंडस्ट्री का चिमनी होता है। उसके बाद वाटर, उसके बाद कॉटन, उसके बाद हनी, देन कॉटन, then chalk, and then iron. Why we have taken this before cotton? Because they are liquid. So these are, see, liquids. These are gases. And these are solids. So in general, gases have least density than liquid and then solid. Solid are most dense and gases are least dense. क्लास चलेगा। हेलो उत्तम सर है? जी सर। हेलो जी सर। जी सर। उत्तम सर है? जी सर। हाँ बस बस आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे आगे सर आगे। मैं स्क्रीन सेट कर रहा था अभी। ओके, नाउ वी हैव टू solve question number 2. Is the screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Tabulate the difference in the characteristics of states of matter. Okay, so these two questions are actually similar kind of question. So what we can do to solve this kind of question, what we have to do, we have to write solid, liquid, and gas.
and then we have to write down their characteristics. Characteristics means property. Then you have to draw a line with scale. Whenever such question will be there, where you write differences, make columns. So the first point is rigidity. On the basis of rigidity, solid means solid are most rigid substance. Okay, they are most rigid. And gases are least rigid. ठोस नहीं होता है, किसी भी बर्तन में हम रखेंगे उस बर्तन का शेप पकड़ लेगा. Rigid. And these are lesser rigid. Lesser rigid than solid. ये एक पॉइंट हो गया. Next point is compressibility. Solids are least compressible. Solid को हम ज्यादा दबा नहीं सकते. Least compressible. And gases are highly compressible. And liquids are moderately compressible. Moderately compressible. Next point is filling of a gas container. Filling of a gas container. सॉलिड को अगर हम किसी सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो सॉलिड पूरा फैल नहीं जाएगा, है ना. ये अपना स्पेस खुद क्रिएट करके किसी एक जगह रहेगा. सो इट रिमेन्स in its own shape and size. Own shape and size. इसमें क्या होता है, लिक्विड में it takes the shape of the container. It takes the shape of the container. और गैस में क्या होता है, it occupies the entire space. थोड़ा सा भी गैस होगा और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो पूरे वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर लेगा. क्यों?
क्योंकि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट से हम इसको लिख सकते हैं। सूरज आया होगा। सर सबकी वॉइस ब्लॉक कर दो सर। जी जी। आपको अनम्यूट किया गया है, खुद को म्यूट ना कर ले। म्यूट ना, अनम्यूट ना कर ले। आपको म्यूट किया गया है, अनम्यूट ना कर ले। अनम्यूट तभी करें जब आपको कुछ पूछना हो, ठीक है। Last 2 points are there. One point is kinetic energy, another point is density. So we will again write characteristics solid, liquid and gas. Comment upon the question upon the following criteria. सर सबको म्यूट कर दो सर, ये बच्चे हैं ये मानेंगे नहीं। खुशी सर रावत को करो आप म्यूट। अभी करता हूँ। Next is kinetic energy. सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। Whereas particles in liquid can flow easily due to some kinetic energy। कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है? गैस में। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव्स एट ए फास्ट स्पीड। पार्टिकल्स of gas has high kinetic energy and moves
randomly at high speed. ठीक है, नेक्स्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि डेंसिटी मैक्सिमम किसका होता है, डेंसिटी सॉलिड का मैक्सिमम डेंसिटी होता है. और मिनिमम डेंसिटी किसका होता है, मिनिमम डेंसिटी होता है किसका, गैस का. गैस विल हैव मिनिमम डेंसिटी. और लिक्विड का कैसा होगा, मॉडरेट. मॉडरेट मतलब सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी और डी. ठीक है, इसमें हमें थोड़ा लिंग्विस्टिक स्किल यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस. A vessel completely fills. A gas completely fills the vessel in which it is kept. A gas completely fills the vessel in which it is kept because gases first move at a high speed randomly. And second reason, gases have large space between them. तो अगर 4 मॉलिक्यूल भी हो गैस के तो वो छोटा सा स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकता है और बड़ा स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकता है. क्यों, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्पीड में यहां यहां मूव करते रहता है, किसी एक जगह नहीं रहता. दे कैन ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑल्सो एंड मोर स्पेस ऑल्सो. ठीक है,
Next question is, a gas exerts pressure on the wall of the container. A gas exerts pressure on the wall of the container because अगर ये वाल है और ये गैसियस पार्टिकल है तो ये टकराता है वाल से, स्ट्राइक करता है। ठीक है, स्ट्राइक करने से क्या होता है, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, फोर्स। इस फोर्स से यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज a wooden table should be called as a table, should be called as a solid. Obviously wooden table को हम solid ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि it has a definite shape and size, it is rigid, it does not flow. Please explain again. Okay, I will explain. देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर प्रेशर होता है किसी भी एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी भी वॉल पे गैसियस पार्टिकल टकराए
तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ये क्या है? एरिया है। तो जहां पर भी फोर्स है और ये फोर्स अब किसी एरिया में अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर तो होगा ही ना। ठीक है, अब समझ में आया? वेरी गुड। A wooden table should be called as a solid. Why? 3C. A wooden table should be called as a solid because first, it is rigid, ठोस है। Second, it does not flow, ये बहता नहीं है एयर और वाटर की तरह। तीसरा, density is high, its density is high। Fourth, it does not change its shape as per the space।